That's great. How are you, ma'am? So first of all, Okay, thank you so much for inviting me on this live season. ma'am, it's our pleasure to host you in TEDx Golden Bridge Initiative, ma'am. Hello, ma'am. Is my voice audible now? Yeah, Yeah. Okay. So, ma'am, first of all, thank you so much कि आपने हमारे इस इनिशिएटिव के लिए हाँ बोला. So it's our pleasure कि आप हम the team TEDx Golden Bridge can interview you. So that's great to have you, ma'am. thank you so much for this opportunity because so many people also wanted to know my story. Exactly. That's great. That's great. And in fact, I'm really very happy that Mr. Dharamveer Singh, our captain Dharamveer, is also in session. So hello, sir. How are you? So in fact, ma'am, yesterday I was just having word with Captain Dharamveer sir. So we were discussing कि मतलब हमने बात की थी कि आपका कल लाइव सेशन है तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सही पर्सन तुम लोग ने सिलेक्ट किया है फॉर द लाइव सेशन. थैंक यू सो मच. मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे चॉइस किया. That's आई great. थिंक That's great. आई थिंक ये सर ऑनलाइन. Yes, I just saw sir कि वो उन्होंने just add किया खुद को, so he is in the live too. ओके. Yeah, so ma'am, as per the protocol, I'll just formally introduce you कि एक बार सारे audience को who exactly ma'am Amisha Chauhan is वो उनको पता चलेगा. So ma'am, I'll just start. So Amisha Chauhan, an Indian woman who survived deadly Mount Everest traffic jam, she climbed 8,848 meter to the highest peak of the world, Mount Everest, after a dreadful attempt at the expenses on being withered away. She failed to reach at the peak after climbing 8,748 meter on 16th May 2019, and she went all the way down towards the base camp and planned for another attempt. Finally, on 23rd May at 8:20 a.m., she achieved her goal and spiked terra firma with the Indian flag. She also fetched many other peaks such as Mount Lepiche Peak in Khumbu, Nepal, and Maniranga Peak, where she drew a sketch at altitude over 6,593 meters. So that's great to hear, ma'am. And first of all, congratulations that last week, 23rd May, ko hi, you celebrated an anniversary, the first anniversary to your uh, journey to Mount Everest, ma'am. So congratulations for that, ma'am. थैंक यू सो मच. Yes, ma'am. So, ma'am, first of all, so considering the current situation, जो lockdown में अभी हम है, so ma'am, how's your quarantine period? Like, how आप कैसे quarantine अपना spend कर रहे हैं आपके life में अभी? स्टार्टिंग में जब ये लॉकडाउन हुआ था तो आई वॉज गेटिंग वेरी बोरिड और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. देन इन सोशल नेटवर्क साइट के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें आइडियाज जो है क्रिएट करने को मिला. तो नाउ डेज आई हैव लर्निंग न्यू थिंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. तो मैं That's आजकल great. आजकल मैं रोलिंग स्केटिंग जो है वो मैं सीख रही हूँ. Okay. Okay, that's great, ma'am. So, like obviously, मतलब कोई भी टाइम बोर नहीं होने चाहिए हम लोग. So कुछ ना कुछ तो हमेशा obviously हमें चालू रखना चाहिए to help ourselves. That's really great, ma'am. That's great. So, moving further, कि मतलब आज का जो हमने ये लाइव सेशन अरेंज किया था उसके लिए वी सिलेक्टेड सम थीम्स राइट. तो उसमें से द बेस्ट थीम व्हिच सूट्स आवर लाइव सेशन वाज आई एम पॉसिबल. सो मैम कैन यू जस्ट टेल कि ये एग्जैक्टली आई एम पॉसिबल का थीम आपने क्यों सिलेक्ट किया? आई एम पॉसिबल इसलिए क्योंकि जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं से आई एम पॉसिबल बन के आता है. और ये चॉइस मैंने इसलिए किया था क्योंकि uh, एक ऐसा टाइम जब मैं माउंट एवरेस्ट जर्नी में जब मेरा अटेम्प्ट फेल हो गया था और मैं एक हफ्ते में 2 बार चढ़ाई करने गई थी. तो मैंने ये करके दिखाया कि ये इम्पॉसिबल जो टास्क था
वो मैंने वो पॉसिबल करके दिखा, जो लोगों को लगता था कि ये नहीं हो सकता है, तो मैं समझती हूँ कि आई एम पॉसिबल। That's great. That's great. That's so nice कि like we are interacting with such a personality कि जिससे सबको inspiration मिलेगा and सबको motivation मिलेगा. That's really great, ma'am. So when our team was discussing कि अमीषा चौहान मैम के बारे में थोड़ा मतलब थोड़ा रिसर्च करते हैं कि मैम ने exactly कैसे अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी and how did she reach at such a level. तो मैम हमने एक चीज वो भी नोटिस की कि you are from a डिफेंस बैकग्राउंड, आपका फैमिली डिफेंस से थोड़ा इन्वॉल्व है, सो हम कैन यू जस्ट टेल कि हाउ वाज योर डिफेंस बैकग्राउंड मोटिवेटेड यू इन दिस जर्नी? मेरी जो पूरी फैमिली जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से आती है। लाइक मेरे ग्रैंडफादर से लेके फादर, मेरे जो पापा हैं, फिर मेरे चाचू, मेरे ताऊ जी, कजन ब्रदर, ऑल केम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड फैमिली। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड फैमिली। सो ओके जो बचपन में, मतलब जब मैं छोटी थी, तो जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड करती है स्टिल अभी भी, वो है डिसिप्लिन। मैं समझती ओके हूँ कि डिसिप्लिन जो है वो एक इंसान को और उसके काम करने के तौर तरीकों को बेहतर बनाता है। तो वी कैन से लाइक डिसिप्लिन मेक ए पर्सन बेस्ट। ओके दैट्स ग्रेट। या डेफिनेटली कि पुलिस का जो बैकग्राउंड है या मिलिट्री का जो बैकग्राउंड है या डिफेंस का बैकग्राउंड है, वन थिंग इज रियली कॉमन कि डिफेंस में मतलब ये डिसिप्लिन, यू सेड कि अगर डिसिप्लिन है लाइफ में देन एनीथिंग इज पॉसिबल टू अचीव. दैट्स रियली ट्रू मैम. So, okay, moving forward, कि did you ever think that you would be become a mountaineer? मतलब for example अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं सोचता हूँ कि मतलब इंजीनियर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, बट आई गेस ये बोलना कि एक माउंटेनियर बनूंगा इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग टू डिस्कस इन अ चाइल्डहुड. तो मैम आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ कि आपने कब डिसाइड किया कि आप माउंटेनियरिंग में जाएंगे या ये आप डिसाइड मतलब ये फील्ड में आप जाएंगे? लाइक जो माउंटेनर एज ए प्रोफेशन जो होता है, तो वो मैंने कभी सुना नहीं था माउंटेनर एक प्रोफेशन भी है। लाइक आई हैव हेard अबाउट टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, तो ये सारे प्रोफेशन मैंने सुने हुए थे। तो माउंटेनर मैंने कभी नहीं सुना था कि माउंटेनर भी एक प्रोफेशन है। और जब मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का डिसीजन लिया था, देन आई केम टू बिकेम टू नो अबाउट माउंटेनर। सो मैं वैसे भी पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पहाड़ पता है, माउंटेन पता है, बट माउंटेनर नहीं पता है माउंटेनर क्या है। एग्जैक्टली. तो इससे जब मुझे माउंटेनर के बारे में पता चला, तो फिर देन मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, एंड अमोई कोर्स किया, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। माउंटेनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 4 कोर्स होते हैं, और वो चारों कोर्स मैंने कर लिए हैं। ओके 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 दैट्स ग्रेट. सो इनफैक्ट आप जितने भी हम क्वेश्चंस और आंसर अभी तक लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस हुए एंड हर एक आंसर पे ये हार्ट्स जा रहे, मतलब ऑडियंस इज आल्सो लविंग ऑल द आंसर्स एंड ऑल द आइडियाज जो आप ऑब्वियसली आपके पास है. सो दैट्स रियली ऑसम मैम. सो मूविंग फॉरवर्ड दैट फॉर एग्जाम्पल माउंटेनियरिंग करने के लिए या आपने जो भी पीक्स आपने चढ़े हैं, जो भी आपने जर्नीज किए, तो उसके लिए डेफिनेटली फंड्स एंड वो सब का ऑब्वियसली यू नीड टू लाइक सर्च के फंड्स के लिए कैसे करने. सो मैम वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि हाउ डिड यू गेट द फंड्स फॉर माउंटेनियरिंग? माउंटेनियरिंग जो इक्विपमेंट होता है और माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो इक्विपमेंट के लिए जो मैंने कलेक्ट किए फंड, वो एक्चुअली कलेक्ट तो किए नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल फैमिली से आती हूँ, तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इतने सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक आपके सर से लेके नीचे तक के जो भी आपके गियर होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं।
तो मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग में लाइक मेरे फादर ने सबसे ज्यादा अफोर्ड किया है, मेरे जो भी मुझे मेरी जो भी जरूरतमंद चीजें होती थी वो लाके मुझे उन्होंने धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ये सर से लेके हैंड तक का, फिर तो ऐसे करते करते मैंने एवरेस्ट का जो मेरा माउंट एवरेस्ट की जर्नी का जितना भी इक्विपमेंट है वो मैंने खुद से अपने फंड मतलब पैसे लगाए हैं उसमें। तो ओके स्पॉन्सर की बात करो तो स्पॉन्सर मुझे ज्यादा स्पॉन्सर नहीं मिले हैं। लाइक आपका जो एवरेज का खर्चा आता है वो 25 से 30 लाख का खर्चा होता है, लेकिन मेरे एवरेज की जर्नी में 35 लाख का खर्चा हुआ है। और ओके मुझे इतना ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला, सिर्फ 11 लाख का स्पॉन्सर मुझे मिला था। ओके ओके ऑल राइट सो लाइक जो मिडिल फैमिली जो होती है वो उतना अफोर्ड नहीं उठा पाती है इन चीजों के लिए। बट मैं बहुत लकी थी, मुझे मेरे फादर जो है उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मेरे इस फील्ड के लिए उन्होंने जितना जो कर सकते थे उन्होंने किया मेरे लिए। that's really great. Definitely. So it's really nice to कि you had a supportive family. So that's really good, ma'am. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड कि जब एवरेस्ट ऑब्वियसली किसी के मन में चलो एवरेस्ट आता है सो वी डिफाइन कि यार एवरेस्ट तो वो सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का। बट एक बार कोई बोलते हैं कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है सो एक डर अंदर किसी को भी आ जाएगा। सो वो डर क्या आपके पास मतलब आपको आया था कि एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगी या कुछ किसी सेंस का एक डर तो हुआ होगा मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एवरेस्ट क्लाइंब ओके करने के लिए। तो जैसे एक्चुअली 2015 में मैंने एवरेस्ट का ड्रीम देखा था, और 2016 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। एंड 2019 में मैंने प्लान किया था कि 2019 में मैं क्लाइंब करूंगी। तो जैसे 2019 आया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अब जो मेरी मंजिल थी वो बहुत करीब आ रही थी, और मैं बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट गई थी। तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन हाँ मेरे घर वालों को थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि बहुत ओके रिस्क है। तो और मैं फैमिली से भी दूर थी तो इसलिए थोड़ा तो डर होता ही है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। दैट्स रियली नाइस टू हियर कि मतलब ये सच में एकदम ही शॉकिंग था। बट सीरियसली अगर मैं लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे जो स्कूल में मैं था सो एक बार स्कूल में भी एक ये आया था कि हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप के लिए ट्राई करते हैं। बट उसके लिए जब आया तो सब लोग एक्साइटेड थे बट जब चीजें बताई कि ये चीजें करना पड़ेगा सो जब 100 हाथ ऊंचे थे उसमें से फिर एक भी हाथ ऊंचा नहीं था कि जब एवरेस्ट में ये चीजें आप लोग को हैंडल करना है कि लाइक एवरेस्ट चढ़ना है तो मेरे को चढ़ना है। बट द थिंग इज कि व्हेन द लाइक डिफिकल्टीज जब हमें पता चली कि ये चीज करनी पड़ेगी ये चीज हमें करना मतलब ये चीज से हमें ओवरकम करना पड़ेगा सो इट वाज रियली रियली डिफिकल्ट कि नहीं नहीं होने वाला हमसे। सो वो आपने जो 1 मिनट में बोला कि आपको बिल्कुल डर नहीं था सो दैट्स रियली नाइस। सो प्राउड like generally like proud of you ma'am. So that's really proud. Okay. So like how far were you prepared for Everest avalanche? मतलब आप आपके लिए प्रिपरेशंस के लिए आपको क्या क्या और करना पड़ा था। अवलांच अगर हम कहें कि ये एक नेचुरल हजार्ड होता है, राइट। तो ये नेचर प्रकृति का जो रूप होता है उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। तो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे एज ए ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम हम लोग फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग में ये सारी चीजें बताई जाती है। और जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, जब हमें पता होता है क्योंकि पहाड़ों में ये सारी चीजें इंसिडेंट हो सकते हैं क्योंकि बहुत रिस्की है, तो उसके लिए हम लोग फिजिकल से ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और अवलांच जो है वो मैंने बेस बेस कैंप में ही देखा था, उससे पहले मैंने कभी ओके कहीं नहीं देखा।
तो टीवी में देखा है, यूट्यूब में देखा है, लेकिन जो आई आई विटनेस जो था वो बेस कैंप में ही टोटली देखने डिफरेंट को होता है। तो बेस कैंप में ही देखने को मिला था। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम लोग रोटेशन करके बेस कैंप वापस कैंप 3 से हम लोग कैंप 3 टच करके कैंप 2, देन इसके बाद हम लोग बेस कैंप वापस आ रहे थे। तो खुम्बू आइसफॉल जो है बहुत ही डेंजरस माना जाता है। तो वहां पे हम लोग और मेरी टीम के कुछ लोग थे, और अचानक से एक आवाज आई, और मैंने जैसे ऊपर देखा तो वो अवलाइन था, क्योंकि ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे अभी धरती हिलने वाली है। तो ये अच्छा। थोड़ा बहुत मतलब डर भी लगा कि अवलांच जो था वो नूब से फेस है, वो उसकी तरफ से आ रहा था। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि वो हमारी तरफ नहीं आया, वो कैंपन की तरफ आया और वहीं से आके बढ़ के वही स्टॉप हो गया। तो सम टाइम ऐसा लगा भी कि ये कहीं हमारे पास आए तो हम कहाँ भागेंगे, क्योंकि खुम्बू आइसफॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना अगर मूवमेंट भी करते हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि हम अपने हर स्टेप को बहुत संभल के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्रिवासिस हैं और बहुत हार्ड ग्लेशियर होता है। तो हम रन भी नहीं कर सकते वहां से। जहाँ पे आप जिस पोजीशन में आप खड़े हैं वहीं पे आपको रहना होगा, चाहे आप लाइन कहीं आए तो बस, या तो फिर आप बचोगे या फिर आप मरोगे, ये होता है। अरे, सो काफी काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि मतलब लाइक आपने सीरियसली मैम कि बहुत आपके एफर्ट्स इसमें काम आए थे। एंड इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी था, किसी ने पूछा था कि मतलब इसके लिए फिटनेस का आपके लिए और कितना इसमें रोल था, कि फिटनेस का रोल इसमें क्या था आपके माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए और बाकी सारे पीक्स जो आपने क्लाइम किया। फिटनेस के लिए ये है कि आपको जो आपका जो फिजिकल फिटनेस होता है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होता है, और उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो माउंट एवरेस्ट जाने से पहले। जैसे मैंने बहुत इससे पहले मैंने जैसे कि 5 पीक क्लाइम किए हैं। और फिजिकल के साथ साथ आपका जो बॉडी एक्लिमेटाइजेशन है वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जो बॉडी का एक्लिमेटाइज है वो उस एल्टीट्यूड में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का जो बॉडी जो एक्लिमेटाइज होता है वो किसी किसी का काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी फिजिकल फिटनेस फिट क्यों ना हो। तो और यस, मैंने उससे पहले 5 पीक किए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी बॉडी को समझने के लिए उस एल्टीट्यूड में। और फिटनेस के लिए मैं जो प्रिपेयर करती थी वो है रनिंग विद रस्टक के साथ। तो 10 किलो का रस्टक उठा के रन करना, 8 to 10 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें हैं। ओके ओके। एंड इनफैक्ट एक और क्वेश्चन था कि आपने जब ये परफॉर्म किया तो उसके बाद ये आपके लाइफ के ऊपर क्या इसका एक इम्पैक्ट रहा था। कैन यू रिपीट? कैन बेसिकली यू एक क्वेश्चन कमेंट में था कि जब ये आपने एवरेस्ट आपने क्लाइम किया तो ये इसने आपके लाइफ के ऊपर क्या एक चेंज आया इसमें मैम। चेंजेस ये आया कि लाइक माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो 8,000 मीटर, मतलब 8,000 मीटर अबव पीक है, और ये मेरा पहला अब 8,000 मीटर। तो वो लोग जैसे कि कहते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन वो पीक जो है क्लाइम करना इजी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। और लाइक जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो फेलियर और सक्सेस में आया है, क्योंकि मुझे एक हफ्ते में ही फेलियर और सक्सेस मिला। फेलियर सक्सेस मिला। Yes.
तो ओके। लाइक हर इंसान की लाइफ में जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं फेलियर और सक्सेस को समझने में, लेकिन मेरी लाइफ में विद इन 1 वीक में मुझे फेलियर और सक्सेस मिला। तो यही इम्पैक्ट था कि मैंने अपने आप को कैसे ग्रो अप किया। Okay, okay. So that's great. And like even after injuries, that what feeling inside you had like has led you to overcome those. So मतलब for example जो आपने माउंट एवरेस्ट या जो भी आपने और भी पीक्स जो आपने क्लाइम की, तो इंजरीज काफी आई होगी, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? नहीं, लाइक जो माउंट एवरेस्ट में मेरी जो इंजरी हुई थी फर्स्ट बाइट, मेरे जो बाकी जो पीक जो मैंने क्लाइम किया उसमें कोई इंजरी नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। और जो मैंने 2017 में लाइक सबसे पहले मेरा जो एक्सपीडिशन था वो लद्दाख में था, गोलाब कांगरी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर इसके बाद मेरा अफ्रीका कंटिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, वो मैंने पीक क्लाइम किया। फिर इसके बाद यूरोप कंटिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। फिर इसके बाद हिमाचल की मनीरंग पीक है, वो किया। फिर इसके बाद नेपाल का एवरेस्ट बेस कैंप से ही ऑन द वे में एक पीक आता है माउंट लोबेशो। वो सारी पीक में मुझे कभी कोई इंजरी नहीं आई है, लेकिन ये था कि हर पीक का अलग अलग एक्सपीरियंस था मेरे पास है। क्योंकि हर पीक में कभी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि लाइक वेदर खराब हो जाता था और वाइट आउट हो जाता था। तो ये सारे हुए हैं मेरे साथ, लेकिन जो इंजरी है वो कभी नहीं हुआ। बट जो इनफॉर्चुनेटली जो मुझे माउंट एवरेस्ट में जो मेरा इंजरी हुआ फर्स्ट बाइट, वो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा ये मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट बाइट देख के ही मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग हैं जो माउंटेनर हैं, उनके मैंने देखे हैं कि किसी की उंगली नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो मैं कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। तो जब मुझे हुआ तो मैं सबसे पहले मुझे बहुत ही पेन हुआ और मैं बहुत ज्यादा दुखी थी कि कि अब पता नहीं क्या हो सकता है मेरे साथ। तो एक्चुअली जो हम लोग प्रिपेयर होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है जब हम माउंटेन में जब जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे ये फर्स्ट बाइट हुआ था, तो लाइक उसके फर्स्ट बाइट के आपके 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपका नॉर्मल होता है, और सेकेंड स्टेज में आपका लाइक नमनेस होना शुरू हो जाता है, और आपका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो आपका जो ब्लड कलर है तो रेड, तो वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में आपका कलर और चेंज होने लगता है, लाइक आप ब्लू एंड पर्पल कलर में हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में आपका जो स्किन जो होता है, टिश्यू जो होती है, वो डेड हो चुकी होती है। तो जब मैं काठमांडू हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो मेरा जो स्टेज था वो सेकेंड स्टेज में था। तो सेकेंड स्टेज में मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब जो मेरे लेफ्ट फुट के जो 5 उंगली है, 5 उंगली में हो चुके थे, और वो अभी सेकेंड स्टेज में था। तो मुझे लगा कि अब ठीक हो जाएगा मेरा। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची, 5 दिन तो मैं काठमांडू हॉस्पिटल में थी। और दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली का जो टेम्परेचर इतना हाई था कि मेरा वो थर्ड स्टेज में आया, और थर्ड स्टेज के बाद फिर 2 दिन मैं डिले हो गई थी। जो मेरे को हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का ट्रीटमेंट लेना था वो डिले हो गया था, और फिर मेरा जो है वो फोर्थ लेवल में पहुंच गया। मतलब मेरी जो दूसरी जो स्किन थी वो डेड हो चुकी थी, और मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी कि अब पता नहीं क्या हो सकता है, या मेरी उंगली काट दी जाएगी, या 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 कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
तो लाइक अभी मेरे जो लास्ट के जो 3 फिंगर्स है उसका ऑलमोस्ट जो नेल्स है वो मतलब लॉस हो चुके हैं, और कुछ फिंगर्स जो है जो आधा मतलब कट चुका है। तो अभी भी जैसे अभी मैं रनिंग, जब मैं अपना फिजिकल फिटनेस जो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो जब मैं शूज पहनती हूँ तो उसमें भी अभी भी पेन होता है, और वो पेन को मुझे बहुत झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में, माइंड में एक चीज आता है, जब हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि नो पेन नो गेन, तो बस यही फॉर्मूला मैं अपनाती हूँ फिर। So that's great मैम। एंड मतलब मैंने भी आपके लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखा था, आपने अपने टो फिंग मतलब पैर के फिंगर्स के आपने फोटोग्राफ रखा था, तो पूरे जो ब्लूइश एंड पर्पल जैसा कलर आपने बोला था, टोटली वैसे हो गए थे, एंड नेल्स वो डिटेच्ड, सो डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल रहा होगा। सो इट्स रियली ग्रेट टू सी कि आपने ये सारा ओवरकम किया, एंड दैट्स रियली रियली ग्रेट मैम। एक्चुअली इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे रिकवर होने में कम से कम 7 मंथ लगे थे, और आफ्टर ओके। 7 मंथ के बाद मैं फिर से माउंटेन में गई, और वो भी विंटर सीजन में, जबकि मुझे ये एक सलाह दिया गया था कि आप अब माउंटेन में अभी कभी नहीं जा सकते हो, आपको कम से कम 1 या 2 साल वेट करना होगा, क्योंकि उसको फिर से फ्रेश या स्ट्रांग होने के लिए कम से कम टाइम लगेगा। लेकिन मैं इतनी मेरा जो पैशन है, मेरा जो जुनून है, वो मुझे खींच के लेके जाता है, और मैंने फिर से बाद विंटर आफ्टर 7 मंथ के बाद मैंने माउंटेन में गई, और विंटर गेम हमारे होते हैं, तो नेशनल में मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं नेशनल में इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, और मुझे इसका भी दुख था कि अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर पता नहीं शायद मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो हिम्मत थी कि यस मैं कर सकती हूँ, और वो मैंने डेफिनेटली करके दिखाया। जब मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे मुझे ये राय दी थी कि आप माउंटेन में नहीं जा सकते क्योंकि आपको फिर से होने की चांसेस है, और कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर डर था कि अगर ये फिर से हो गया तो फिर तो डेफिनेटली मुझे मेरे पैर को काटना पड़ेगा। तो मैंने बहुत केयर मतलब बहुत केयरफुल रही, और और ये भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था कि मैं लोगों को ये बता सकती हूँ कि आप लोगों की बात को सुनो, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था कि आप मत जाइए, लेकिन मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा कि यस आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, और आप जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम पॉसिबल, जो मैंने क्यों वर्ड मतलब क्यों ये मैंने चुना, टैगलाइन उसकी। चुना क्योंकि ये मैंने वो करके दिखाया है, जो इम्पॉसिबल है उसको मैंने पॉसिबल करके दिखाया है। तो यही चीजें है, यही मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं चाहती हूँ कि लोग, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग इस चीज को नोटिस करें कि ये कितना टफ होता है कि आप इस चीज को झेलते हो और फिर भी आप ये सारी चीजों को अचीव कर लेते हो। ओके ओके, दैट्स रियली ऑसम मैम। और एक और क्वेश्चन कमेंट में था कि और अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि और कौन से पीक्स आप क्लाइम करने के लिए सोच रहे हैं, अभी ऐसा कोई प्लान आपने बनाया है या? एक्चुअली मेरा जो मेरा ड्रीम था कि जो 7 कंटिनेंट के जितने भी हाईएस्ट पीक है वो मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, और उनमें से मैंने ऑलमोस्ट 3 कर लिए हैं, एशिया कंटिनेंट के, और अफ्रीका कंटिनेंट के, और यूरोप कंटिनेंट के। बाकी मेरे जो 4 रह गए हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो भी मैं कर लूँ अगर मुझे स्पॉन्सर मिले तो। ओके और ओके, दैट्स जैसे ग्रेट। हमारे लाइक हमारे इंडिया में भी जैसे हिमालय रेंज में भी इतने ब्यूटीफुल पीक है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आई विल क्लाइम ऑल दीज पीक। ओके, बट बाकी जैसे आपने बोला कि 7 कॉन्टिनेंट में से उसमें से सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे लाइक डेडली वाला तो आपने और ऑब्वियसली पार कर ही लिया है, सो आई गेस कि अब
आपके लिए मतलब और काफी मतलब इजी एंड काफी आपको और मोटिवेटिंग रहेगा कि और अभी तो आप कर पाएंगे ये चीज, सो दैट्स रियली ग्रेट मैम। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो लाइक कुड यू प्लीज एलाबोरेट ऑन योर जर्नी आफ्टर द फेलियर, मतलब जो आपने एक वीक का जो आपने अभी बोला कि फेलियर एंड सक्सेस आपने तुरंत ही दोनों चीजें देख ली थी, सो वो एक वीक का जर्नी आप बताएंगे मैम कि वो आपने कैसे ओवरकम किया? बिफोर फेलियर्स और आफ्टर फेलियर्स? बेसिकली आफ्टर बिफोर फेलियर, आफ्टर फेलियर और बिफोर फेलियर्स, आफ्टर फेलियर? आफ्टर फेलियर। आफ्टर फेलियर, ओके। जब मैं बेस कैंप पहुंची थी, तो बेस कैंप का जो मैं अगर बेस कैंप का सिचुएशन बताऊं तो वहां पे क्या सिचुएशन था कि हमारी जो इंडियन पुलिस की टीम थी, मेरे कंपनी के जो मैनेजर थे और थोड़े बहुत शेरपा लोग थे। तो लाइक जब मैं बेस कैंप पहुंची तो मेरे जो इंडियन पुलिस टीम के जो डॉक्टर थे, जो उनकी भी टीम थी, उनकी टीम के जो मेंबर्स है वो ऊपर क्लाइंब करने के लिए जा चुके थे। और वहां पे कुछ जो टीम के जो हेड लीडर और डॉक्टर जो वहां पे थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यही बोला कि अभी अमीषा आप हमारे साथ नीचे जाओगी काठमांडू, अब आपको नहीं जाना है। लेकिन फिर मैंने बेस कैंप में सबसे पहले अपने फैमिली को कम्युनिकेट किया। वहाँ पे एक मतलब अवेलेबल होता है कि आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अब मुझे दोबारा जाना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए इतना आसान नहीं था जितना आसान मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में था, बिल्कुल बहुत नॉर्मली वो चीजें चल रही थी, लाइक जो चीजें चलती है। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आपको अगर दोबारा जाना है तो उसके लिए आपको फिर से फंड कलेक्ट करना होगा। लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे फादर ने फिर लोन लेके फिर 8 लाख का इंतजाम किया। देन उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर वो तो अवेलेबल था वहां पे, बट उसको भी वहां पे कैंप 4 में पहुंचाना है, तो वो इतना इजी नहीं होता। एंड देन जो आपका थर्ड मेन होता है वो है शेरपा। तो वो शेरपा मिलना इतना आसान नहीं था बिकॉज ऑलरेडी ऑल जो जितने भी शेरपा लोग थे वो अपने क्लाइंट के साथ नीचे जा चुके थे काठमांडू। तो बहुत थोड़े 5-6 शेरपा लोग थे, लेकिन वो शेरपा लोगों ने सारे लोगों ने मना कर दिया था मेरे साथ जाने के लिए। उसका रीजन ओके। यही था क्योंकि उनको पता था कि ये लड़की ऊपर जाके वापस नीचे आई है। और आपका फर्स्ट टाइम पे क्या होता है कि आपका जो फिजिकल फिटनेस जो होता है वो ऑलमोस्ट टाइर्ड हो चुका होता है, मतलब वीकनेस आ जाती है उसमें, और दोबारा जाना पॉसिबल नहीं होता। फिर या तो अगर दोबारा जाने के लिए कम से कम आपको 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास टाइम इतना कम था कि आपका जो सेकंड विंडो है वो ओपन हो चुका था। तो लाइक मैंने सबसे सबसे मेन जो चीज थी वो थी शेरपा अरेंज करना। तो शेरपा अरेंज करने के लिए मेरे जो इंडियन पुलिस के जो डॉक्टर थे और मेरी टीम के जो मैनेजर थे, उन्होंने कैसे न कैसे करके अरेंज किया मेरे लिए। तो फाइनली जो मेरा पुराना शेरपा था वो स्नो ब्लाइंडनेस हो चुका था, तो इसलिए वो मेरे साथ दोबारा नहीं जा सकता था। तो इसलिए मुझे फिर नया शेरपा अरेंज करना पड़ा। तो फाइनली मेरा नया शेरपा अरेंज किया और उसके बाद एक दिन का रेस्ट लेके फिर उसके बाद दोबारा हमने क्लाइंब करना शुरू किया। तो लाइक हर कैंप में आपको एक एक नाइट स्टे करना था क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जैसे कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग 2 नाइट स्टे करते थे, लेकिन ये जो सेकेंड अटेम्प्ट में टाइम बहुत कम कम होने की वजह से 1 नाइट स्टे करना पड़ा। तो ये एक तो अपने आप में एक चैलेंज भी था क्योंकि मैं फिजिकल फिटनेस मतलब मेरा जो फिजिकली जो है वो मैं ऑलरेडी मतलब मेरा वीकनेस हो चुका था, बहुत टायर्ड हो चुकी थी। और ये पॉसिबल भी है। दूसरा ये है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, जो मेरा विल पावर है वो कहीं ना कहीं
मेरा विल पावर ने मुझे मतलब मेरा सपोर्ट मुझे दिया है। तो हम देन फिर 20 को मैं वहाँ से बेस कैंप से निकली थी और फाइनली 23 को मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक वहाँ पे पहुंची। तो बहुत ही मतलब एक चैलेंज था जो जिस चैलेंज को मुझे एक्सेप्ट करना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि अमीषा जाएगी तो वापस लौट के नहीं आएगी, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बोल दिया था। लेकिन मैं और इससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप सबमिट करते हो तो सबमिट करके आपको वापस नीचे भी आना, तब जाके आपका पूरा एक्सपीडिशन जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। कंप्लीट होता है जी। तो वही है लाइक इम्पॉसिबल जो है वो मैंने पॉसिबल करके दिखा आज। दैट्स नाइस। और एक कमेंट आपके लिए ऐसा था कि यू आर अ बिग मोटिवेशन टू एवरीवन दी फ्रॉम अमन, अमन करके किसी ने बोला है। सो डेफिनेटली मैम, यू आर मोटिवेशन टू एवरी सिंगल पर्सन। यस मैम। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे अभी आपने बोला कि व्हेन यू वर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे आप चढ़ चुके थे, तो एक फीलिंग ही कुछ अलग थी। सो मैम, वहां पे जब आपने ट्राई कलर होस्ट किया था, जब आपने इंडिया का तिरंगा वहां पे होस्ट किया, तो वो फीलिंग आपको, आप कुछ उसके बारे में शेयर करेंगे मैम? um, वो फीलिंग लाइक जो आपकी टायर्डनेस होती है वो वाली फीलिंग अलग थी। और वो जब आप टॉप पे पहुंचे और जब आप अपना देश का झंडा फहरा रहे थे वो फीलिंग अलग थी। तो लाइक क्या होता क्या है, जब हम पहुंचते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे अंदर वो चीजें नहीं थी, मैं इतनी खुश थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जैसे वहां पहुंची सबसे पहले मैंने अपना बैग नीचे उतारा और अपने बैग से इंडिया का फ्लैग निकाल के और फिर उसके बाद कैमरा निकाल के मैंने अपने शेरपा को दिया और बोला जल्दी से फोटो क्लिक करो। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए प्राउड फील था, क्योंकि फाइनली मैं वहां पे पहुंची और मैं अपना देश का झंडा वो है वो हॉस्ट कर रही हूँ। तो वो फीलिंग बहुत ही अलग ओके। थी। ओके। और इनफैक्ट आप अभी जब हमारी बात हुई तब ये भी था कि आपने पीक क्लाइम करके वहां पे कुछ स्केच किया था, और वो कमेंट में भी अभी जस्ट क्वेश्चन था कि आपने ऐसे तो क्या वहां पे ड्रॉ किया था? लाइक वो एवरेस्ट वाला पीक नहीं था, कोई दूसरा माउंटेन था, राइट? सॉरी। आपने एक माउंटेन पे चढ़ के कुछ ड्रॉ किया था ना? यस 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 यस, एक्चुअली आई वांट टू रिमाइंड कि मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है। हाँ, एक्चुअली ये मेरा पहला 6,000 मीटर का एक्सपीडिशन था। और 1993 के जो इंडो नेपाली वुमेन एक्सपीडिशन जो हुआ था वो आईएमएफ के थ्रू एक सिल्वर जुबली एक्सपीडिशन था। तो जो पुराने माउंटेनर्स थे तो और नए माउंटेनर्स, तो पुराने माउंटेनर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस जो हमें मिला वो काफी अच्छा था। और हम लोग बहुत ही मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे पुराने माउंटेनर्स के साथ एक्सपीडिशन करने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छे जो होनहार माउंटेनर्स हैं तो उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो वो जो ड्रॉ मैंने किया था वो एक्चुअली उसका रीजन ये था कि वहाँ पे उस एल्टीट्यूड में जहाँ हम लोग कैंप 4 में थे, तो मेरे जो टीम के और जो पुराने माउंटेनर थे वो एक्चुअली दो टीम बनी थी, एक सीनियर की टीम और एक जूनियर की टीम। तो सबसे पहले जूनियर की टीम ने सबमिट किया, फिर उसके बाद सीनियर की टीम ने। तो जब हम लोग जब सबमिट करके जब हम कैंप 4 में पहुंचे तो बहुत खुश थे। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, लाइक मैंने फिर वो स्केच बना, क्योंकि वो मेरा 6,000 मीटर का पहला एक्सपीडिशन था और वो सक्सेसफुली मैंने सबमिट किया। तो इसलिए उस खुशी में फिर मैंने ड्रॉ मतलब स्केच करना शुरू किया फिर। ओके, ओके।
दैट्स रियली गुड। एंड जब अगर आप एनआईएम उत्तरकाशी की अगर बात करें, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो था, तो उत्तरकाशी में से मैम वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अ, वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली मैंने मेरे जो कोर्स है माउंटेनियरिंग कोर्स, वो मैंने 2 इंस्टीट्यूट से किया है, निम्स और जिम से, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि पहलगाम में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैंने अपने 3 कोर्स जो है, बेसिक, अमोय एंड सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स जो है वो निम्स से किया, और एडवांस कोर्स जो है वो मैंने जिम से किया है। तो मेरा दोनों इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि उस इंस्टीट्यूट को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देके मुझे इस लायक बना दी कि मैं एक अच्छी माउंटेनर बन सकूँ। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे जो इंस्ट्रक्टर जो थे वो भी मेरे जो पोस्ट, जो कहते हैं कि सीआई जो होते हैं, पोस्ट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, तो वो रोप में मुझे वो इंस्ट्रक्टर मिले जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो उनके साथ मुझे मौका मिला। और बाकी तो ओवरऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दोनों इंस्टीट्यूट को, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और इस लायक मुझे बनाया कि मैं एक अच्छी माउंटेनर बन सकूँ। ओके। और मैम आपका थोड़ा वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, सो एक बार खाली। ओके। हाँ। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड कि अपार्ट फ्रॉम माउंटेनियरिंग आपने स्कीइंग भी एक प्रोफेशन एक आपने सिलेक्ट किया था। सो मैम ये स्कीइंग के बारे में आप कुछ बताएंगे मैम? इस चीज की अगर जर्नी मैं बताऊं तो ये भी मेरा माउंटेनरिंग के साथ साथ ही हुआ था। 2017 में ही मैंने स्कीइंग का कोर्स किया था, और 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल में पार्टिसिपेट किया था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे पार्टिसिपेट करने का। और 2020 में जो फर्स्ट खेलो विंटर गेम भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमार्ग में, उसमें मैंने वुमेन सीनियर वुमेन अल्पाइन स्कीम में ब्राउन मेडल हासिल किया। तो वो भी मेरे लिए बहुत ही एक फीलिंग था कि जब मैं एवरेस्ट करके आई थी, तो एवरेस्ट के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं अब इस साल में लाइक पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर इसके बाद आप एवरेस्ट सक्सेसफुल, और इसके बाद फिर आपका मेडल लेके आना, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, और मैं बहुत ही खुश थी। और Okay. All right. All right. So, did you ever feel that you won't be able to make the change you wanted to? कैन यू हेयर माई वॉइस? मेरी आवाज थोड़ा आ रही है? कम आ रहा है। थोड़ा कम आ रहा है। लाइक कमेंट में भी एक किसी ने लिखा कि थोड़ा वॉइस आपका कम आ रहा है। ओके। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, अब काफी बेटर है मैम। ओके। आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ऐसा कभी आपने फील किया था कि जो आप चेंज लाना चाहती थी एक सोसाइटी में, एक आपके पूरे कल्चर में, तो वो आप नहीं ला सकी, या बाकी है लाने के लिए, ऐसा कुछ आपको लगा मैम? कभी लगा ऐसा? चेंजेस लाइक बहुत सारी चीजें हैं चेंजेस लाने के लिए, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो खासकर लड़कियों की, क्योंकि कई बार हमारी सोसाइटी जो है वो हमें अलाउड नहीं करती है। जैसे अभी लाइक माउंटेनरिंग है, तो कभी ऐसा हो लगता है कि लड़की अभी बाहर जा रही है, ट्रेनिंग के लिए जा रही है, लाइक पहाड़ चढ़ने जा रही हो, तो हमारी सोसाइटी कभी कभी अलाउड नहीं करती है। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जो लड़कियां होती हैं सोलो ट्रैवल करती हैं, तो उनको भी सोसाइटी बहुत अलग नजर से देखती है। तो मैं वही चाहती हूँ कि सोसाइटी में ये सारी चीजें का जो ये नजरिया है उसको बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि लड़कियां जो है वो
मुझे नहीं लगता कि वो किसी से कम है, और वो जो चीजें वो एक्सप्लोर करना चाहती है वो कर सकती है। लाइक मेरे इंसिडेंट में आ, मैं क्या बताऊं आपको कि यस, मेरे साथ भी होता था कि कई बार मेरी फैमिली को लगता था कि अभी लड़की बाहर जाएगी तो कुछ हो सकता है ऐसा। तो लाइक फिर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई और फिर मेरी फैमिली ने धीरे फिर मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी और काफ़ी ओपन होने लगी। फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ दिया कि यस। और मैं जैसे कि आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, तो फिर मेरे जैसे मेरे पापा ने मुझे काफ़ी बचपन से लेकर मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। लेकिन एज ए पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं डर लगता था कि लड़की है तो बाहर जाना कैसा। लेकिन जैसे जब मैं बड़ी हुई, मैंने जैसे अपना कॉलेज कंप्लीट किया, फिर जब मेरी जॉब लगी और जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो फिर तब मेरे पेरेंट्स मतलब वो बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे फिर। तो उनको उनको इतनी चिंता नहीं थी। लाइक बट हमारी जो सोसाइटी है, अगर मैं जब भी देखती हूँ तो लाइक अगर मैं अपना माउंटेनियरिंग फील्ड की बात करूँ तो मेरे जैसे गांव में मेरे नानी के गांव में होता है कई बार कि लड़की पहाड़ चढ़ने जा रही हो तो कुछ भी हो सकता है। और रिसेंटली अभी जैसे मेरे को फर्स्ट बाइट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि नहीं, अब पहाड़ में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की के हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या होगा फिर, आपके कोई मतलब आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसी सारी चीजें थी। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वो लोग भी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग उनको नहीं बताएंगे तब तक ऐसे लोग अवेयरनेस नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली। मैं यही चाहती हूँ कि लोगों के अंदर जो है वो चेंजेस आए। और मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है वो बाहर आए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, ताकि वो कभी भी जब भी उनके सामने कोई भी मुश्किलें आए तो वो डट के सामना करें। और उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली को भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी फैमिली अपनी बेटियों को, खासकर बेटियों की बात करें तो अपनी बेटी को सपोर्ट करे, लाइक जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट काफी काफी अच्छा मैसेज एक था। एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो आपने जो अभी शो किया उस पे भी हमारी टेडेक्स गोल्डन ब्रिज की टीम काफी काम कर रही है। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट टेडेक्स गोल्डन ब्रिज, जो टेड पूरा इनिशिएटिव है उन्होंने स्पेशली एक वुमेन के लिए एक अलग से एक इनिशिएटिव किया जिसका नाम टेडेक्स वुमेन है। सो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट एक 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 रियली एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें आज लाइक आज के लाइफस्टाइल में चाहिए। एंड डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट एंड हेड्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू। यस मैम। सो लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लाइक गेम्स या किसी और आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे मैम अपार्ट फ्रॉम माउंटेनियरिंग या स्कीइंग, और कोई हॉबीज या गेम्स में मैम? यस, जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर थी। तो मैं ओके। बास्केटबॉल स्टेट लेवल में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैं नेशनल सेलेक्टेड भी हूँ। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ड्यू टू वही जो मैं आपको बता रही थी कि लाइक पेरेंट्स घबरा जाते हैं बेटी को बाहर भेजने के लिए। तो मेरा जो ट्रेनिंग, जो बास्केटबॉल का जो भी ट्रेनिंग होता था वो हमारे स्कूल में नहीं होता था, हमारे स्कूल के बाहर होता था। और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में किया है। तो मैंने बैंगलोर में मैंने अपनी स्कूलिंग किया है। वैसे तो मैंने स्कूलिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से किया है, लेकिन बैंगलोर में ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बास्केटबॉल को अपने मतलब स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने का।
तो और जब मैं नेशनल सेलेक्टेड हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मैं चाहती थी कि नेशनल में रिप्रेजेंट करूं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा, क्योंकि मैं एक लड़की थी और उनको डर था कि कहीं बेटी अगर बाहर जाएगी कुछ हो ना जाए ऐसे करके। और क्योंकि मेरे पापा भी हम लोगों के साथ नहीं रहते थे, उनकी पोस्टिंग कहीं और आ गई थी, तो मम्मी अकेली थी, तो मम्मी को हमेशा डर रहता था, तो इसलिए फिर मैंने भी उनको कभी अफोर्ड नहीं किया कि मुझे जाना है ये। तो उस टाइम पे मैं छोटी सी बच्ची बच्ची थी, मैं स्कूल टाइम पे पढ़ती थी। और स्पोर्ट्स से ज्यादा मैंने एजुकेशन लाइक पढ़ाई में ही ज्यादा मैंने फोकस किया कि मैं, मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं एक मतलब लाइक कुछ इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, ऐसा ही कुछ चाहती थी। तो स्पोर्ट्स में अगर मैं कहूँ कि मैं वैसे बहुत सारे गेम खेलती हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल के टाइम पे बहुत सारे चीजों में पार्टिसिपेट किया। तो बास्केटबॉल ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लाइक हॉकी हो गया है, आपके कबड्डी हो गया है, वॉलीबॉल हो गया है, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और सब में मुझे कुछ ना कुछ मेडल मिलता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मैं आती थी। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी, ओके। स्पोर्ट्स में मैं काफी अच्छी थी। लेकिन आज स्कूल टाइम पे मैं अपना करियर स्पोर्ट्स में बना सकती थी, लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता था कि आपकी जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी पढ़ाई पे ही फोकस किया, और इसी में ही मैं अपना करियर बनाती गई। लेकिन बाद में लाइक अब बाद में जैसे मैं स्कीइंग में स्कीइंग जो है विंटर गेम है, तो विंटर गेम में मैं अभी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो बहुत ही लेट में मैंने ज्वाइन किया, तो लोग मुझे कहते थे हमेशा, आपको तो बचपन में ये सारी चीजें करनी चाहिए, आप इतना लेट कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि एज मैटर करता है इसमें। ओके। और अभी जस्ट कमेंट सेक्शन में कुछ आपके मूवी के बारे में कुछ किसी ने कमेंट किया कि आपकी कोई मूवी या कुछ आ रही है, समथिंग फ्रॉम दैट। मूवी, यस एक्चुअली मेरा अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, जो ओह, कैनेडियन, दैट्स ग्रेट। एक कैनेडियन फिल्म मेकर है, इलिया इलिया करके नाम है उनका। तो वो जब इंडिया आए थे, तो इंडिया में आके उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। वो उनका मुंबई में कोई इवेंट था, लेकिन विंटर गेम की वजह से मैं मुंबई नहीं जा पाई। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि वो मेरे लिए यहाँ आए देहरादून, और उन्होंने देहरादून में मेरा शूटिंग किया और मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं अभी उन्हीं का मूवी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में उन्होंने बोला है कि अभी लॉकडाउन चल रहा, तो लाइक वो अभी सितंबर या अक्टूबर में ही डिक्लेयर करेंगे। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। दैट्स रियली ग्रेट मैम। लाइक ये फैक्ट अभी जस्ट हम लोग को कमेंट सेक्शन में ही किसी ने कमेंट किया तो वो पढ़ा, सो दैट्स रियली रियली ग्रेट मैम। ओके, सो अगर आप माउंटेनियर नहीं होते तो आप और क्या होते, मतलब आपके आपके लिए कोई बैकअप प्लान आपने सोच के रखा था मैम? अम, वैसे कुछ खास तो नहीं, लेकिन अगर मैं माउंटेनर नहीं होती तो मैं इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करती। ओके। दैट्स रियली ग्रेट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड कि आपका रोल मॉडल कौन है मैम तो अभी? रोल मॉडल, अगर मैं माउंटेनरिंग फील्ड की बात करूँ तो मेरी रोल मॉडल जो है वो है बचेंद्री पाल मैम, जो भारत की पहली वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो वो मेरी रोल मॉडल है, उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया, काफी मोटिवेटेड किया है। जब मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना था, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वही एक है जो मुझे मोटिवेट कर सकती है, जो मुझे एक गाइडलाइन दे सकती है। और वो इसलिए, क्योंकि मैंने उनको इसलिए चुना था क्योंकि वो मेरे जो मेरा बॉर्न प्लेस है उत्तरकाशी,
उत्तरकाशी मेरा बॉर्न प्लेस है, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव आता है नाकुरी। तो नाकुरी बचेंद्री पाल मैम भी नाकुरी गांव से ही है, और मेरा बॉर्न जो है नाकुरी में ही हुआ है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उन्हीं के गांव से बिलोंग करती हूँ, और नाकुरी जो है वो मेरी मम्मी का मायका है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि वो मेरे घर घर के बिल्कुल पास में रहती है, तो क्यों ना मैं उन्हीं से गाइडलाइंस लूँ कि कैसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है। तो जब मैं उनसे मिली थी और जब मैं उनके घर गई थी, तो उनके घर में लाइक जैसे मैंने एंट्री किया तो उनके घर पूरा मॉडल से, और जो उन्होंने अचीवमेंट किया था तो उसको देख के भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी किस तरीके से मैम ने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को अचीवमेंट किया है। तो फिर वही मेरी रोल मॉडल रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी जो लाइक जो अभी मेरी प्रॉब्लम्स है, लाइक आई कांट स्पीक प्रॉपर, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप भी है। मुझे उनको सब कुछ पता है, बिकॉज आई कांट हेयर प्रॉपर, आई ओनली अंडरस्टैंड टू रीड लिप रीडिंग। तो लाइक उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि इस दुनिया में नोबडी इज परफेक्ट। तो आप जैसे हो वैसे रहो, आपको लोग वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। तो वो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और जब से उन्होंने मुझे ये बातें बताई है तो मैं अब कभी नहीं घबराती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं 100 लोगों के बीच में कभी नहीं बोल पाती थी। या तो मेरे साथ एक पर्सन हो या 2 पर्सन हो, उन्हीं के साथ मैं बोल पाती हूँ। अदरवाइज मैं 100 लोगों के बीच में कभी स्पीच मैंने कभी नहीं दिया। जब मुझे मेरी लाइफ में जब बचेंद्री पाल मैम आई और उन्होंने जब मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने जब मुझे बताया कि इस दुनिया में लोग जो है वो परफेक्ट नहीं होते हैं, तो उस दिन से मैंने अपने आप को काफी मोटिवेट किया, और फिर इसके बाद मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चेंजेस आया है। तो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। दैट्स ग्रेट मैम। एंड अगर आपकी लाइफ को या आपके बारे में एक वन वर्ड में अगर हमें आपको डिस्क्राइब करना, तो मैम वो कौन सा वर्ड होगा? वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा यस मेरी मैम। लाइफ का? मेरी लाइफ का मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। मैम इनफैक्ट ये जो इंस्टाग्राम का जो लाइव सेशन है वो 1 आवर के लिए ही होता है, सो आई गेस लास्ट 20 सेकेंड्स है। तो हम एक बार फिर से लाइव स्टार्ट करके आप एक बार प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो बस मुझे एक मैसेज आया था अभी। राइट। या सो बस 5 सेकेंड्स और है। या सो ओके। सो मैम अगर बात करें तो इतना सब अचीव करके एक आपका फीलिंग आपका क्या है मैम, कि व्हाट्स योर फीलिंग आफ्टर अचीविंग सो मच इन लाइफ? कुछ उसके बारे में आप बोलेंगे मैम? इतने सारे अचीव करने के बाद जो सबसे पहला जो प्राउड फील होता है वो मेरे पेरेंट्स को हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी मतलब अपनी कभी मतलब रियलाइज नहीं किया था कि मेरी बेटी इतना कुछ अचीव कर पाएगी। और मैंने अपने पेरेंट्स को वेरी मतलब लाइक फील प्राउड करवाया है। और दूसरा ये है कि मैं लोगों को बहुत सरप्राइज देती हूँ। लाइक मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं और जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जिन्होंने कभी भी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अमीषा जो है वो इतने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करेगी, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को सरप्राइज देती हूँ, और उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। और दूसरा ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसे लोग जो है वो मुझे मेरे नाम से मुझे जानते हैं, तो वो भी एक अलग सी फीलिंग आती है। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। पहले हो कभी कभी होता है कि लाइक
पेरेंट्स के नाम से आप जाने जाते हो। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है जब जब उनको भी मेरे नाम से जाना जाता है। और कई बार ऐसे रिलेटिव होते हैं जो उनके करीबी होने के बाद भी वो उनको नहीं पहचान पाते हैं, बट मेरी वजह से वो उन्हें जानने लगते हैं। तो मेरे पेरेंट्स जब मुझे बताते हैं कि शादी जैसे दिन में जब जाते हैं या कहीं पे वहाँ उनके लोग मिलते हैं, तो वो भी मुझे बताते थे कि आप मुझे बता बोल रहे थे कि आप अच्छा हैं। तो वो एक अलग ही खुशी मेरे पेरेंट्स को भी और मुझे भी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब उनकी बेटी कुछ अचीव करती है तो। I can't hear your voice. No, I can't hear your voice. No, can you remove your headphone? अब आ रही है मैम? Fine, now fine. या मतलब बेसिकली वो शायद लाउड स्पीकर पे इसलिए थोड़ा एको का प्रॉब्लम आ रहा था, बट आई गेस नाउ इट्स फाइन, राइट? ओके। सो मैम, जैसे आपका बायो में खेलो इंडिया के बारे में भी कुछ था मैम, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मैम प्लीज, कि वो क्या एग्जैक्टली खेलो इंडिया स्पोर्ट्स में आपका पार्टिसिपेशन रहा था मैम? खेलो इंडिया जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम है, वैसे तो खेलो इंडिया हर इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट जो विंटर गेम था वो पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था भारत सरकार की तरफ से। वो हुआ था गुलमार्ग में, जम्मू कश्मीर में। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था सीनियर वुमेन अल्पाइन स्कीइंग में। जो मेरा गेम जो है वो अल्पाइन स्कीइंग है। और लाइक जैसे विंटर गेम में बहुत सारे गेम्स आते हैं, तो मेरा जो गेम है वो है अल्पाइन स्कीइंग। और अल्पाइन स्कीइंग में मैंने फर्स्ट टाइम सीनियर वुमेन अल्पाइन स्कीइंग में ब्राउन मेडल हासिल किया है। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। या सो मूविंग फॉरवर्ड कि जैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा ग्लिम्स आपने बताया था कि आपका स्कूल लाइफ और आपका कॉलेज लाइफ कैसा था। तो मैम, और जैसे आपने बोला भी कि आप स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में आप थोड़े डायरेक्टेड थे स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो मैम, लाइक आप अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्यों मतलब आपने अपना फील्ड नहीं सिलेक्ट किया? लाइक अभी अगर कोई भी फैमिली का बात करे, तो अगर लड़का आता है लड़की आती है, तो जैसे हमने वो काफी एक मूवी में जो हमने देखा था कि लड़का आता है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की आती है तो डॉक्टर बनेगा, तो वो आपने कैसे ओवरकम किया मैम? अम, मैंने आफ्टर 12 कंप्लीट करने के बाद, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जब मेरी दिल्ली नोएडा में जब मेरी जॉब लगी थी, तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे मैं जॉब कर रही थी। तो मुझे ओके। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुके थे जॉब करते करते। और 1 साल में स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा फील करते हो, जैसे आप इंजीनियर बन गए हो आप। लेकिन इंजीनियर बनना मेरा कभी भी सपना नहीं था। लेकिन आप न्यू एनवायरनमेंट में आप ज्वाइन होते हो तो काफी अच्छा लगता है। तो फिर इसके बाद जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, जब दूसरा साल आया, तो दूसरे साल में मैं काफी बोर हो गई थी, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट पे काम करना, और आपकी जो वो सेम कुर्सी थी वो, और आपका जो सेम सिस्टम था, उस सिस्टम को और उस कुर्सी से और उस सेम प्रोजेक्ट से मैं काफी बोर हो चुकी थी। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। लाइक आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ हट के करना चाहती थी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ के माउंटेनरिंग फील्ड को, क्योंकि माउंटेनर को मैंने अपना पैशन बना और चाहती थी अपने पैशन प्रोफेशन जो है वो मैंने 2 साल काम किया है।
बट मैं उसको लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं काफी लंबा अगर उसको लेके जाऊंगी तो आई विल नॉट अचीव एनीथिंग इन माय लाइफ। ओके ओके। सो अच्छा मैम, अगर आपके प्रोफेशन जो आपने माउंटेनियरिंग का बोला तो वो थोड़ा लाइक अभी के मतलब फैमिली के लिए वो शायद होगा कि नहीं, माउंटेनियरिंग में मैं अपने लड़के अपनी लड़की को नहीं भेज सकता। तो काफी बार हमने देखा है कि पेरेंट्स शायद हमें ड्रीम्स में सपोर्ट ना करे। तो और आपने जैसे बोला कि आपके फादर ने बहुत आपको सपोर्ट किया पूरे आपके जर्नी में। तो मैम पेरेंटल सपोर्ट एक लड़के या एक लड़की के ड्रीम में कितना इम्पोर्टेंट है आपके आपके हिसाब से मैम? अगर मैं माउंटेनियरिंग की बात करूं तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को स्टार्टिंग में जब मैंने उनको बताया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, तो उनका जो पहला रिएक्शन था वो था नो। वो इसलिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स लाइक जैसे मेरे पापा हैं वो आर्मी में एस आर्मी मैन है, और उनकी जो पोस्टिंग है वो सियाचन में भी रही है, तो उनको पता है कि सियाचन जैसे एल्टीट्यूड में रह के और यू नो लाइक उनको मालूम है हर चीज कितना रिस्की है। और मेरी जो माँ है, मेरी मम्मी जो है वो पहाड़ से बिलोंग करती है। और उस जमाने में लाइक जब वो स्कूल जाती थी तो 14-15 किलोमीटर पैदल का सफर करना पड़ता था उनको, और वो भी पीठ पे बैग लेके, स्कूल का बैग लेके जाना और काफी हैवी हैवी चीजों को। तो उस जमाने की अगर हम बात करें तो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि माउंटेन जो पहाड़ में चढ़ना कितना रिस्की होता है, और वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ये रिस्क उठाऊं करके। तो मेरे पापा ने जैसे सियाचन में काफी चीजों का स्ट्रगल किया है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भी ये सारी चीजें स्ट्रगल कर रिस्क उठाए। बट जब मैं थोड़ी जिद्दी भी हूँ, तो लाइक तो मैंने उनको बोला कि मुझको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। मैंने उनको ये नहीं बोला था कि मुझे माउंटेनर बनना है, मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। फिर इसके बाद उनको मैंने बताया कि मुझे ये कोर्स करना है, तो मेरे फैमिली ने पहले मुझे मेरे पापा मम्मी ने मुझे पहले ये बोला कि ठीक है आप बेसिक कोर्स करके दिखाइए। फिर बेसिस कोर्स करने के बाद जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया, और जो मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे और नीम के जो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे और वहाँ के जो स्टाफ थे, उन लोगों ने जो मेरा आपका ओवरऑल जो देखा है उसका रिजल्ट मेरे पेरेंट्स को उन्होंने दिया, फीडबैक दिया कि हाँ ये लड़की कर सकती है। तो देन इसके बाद मेरे फैमिली ने मुझको धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। लाइक जैसे 2017 में मेरा जो पहला एक्सपीडिशन था, फिर 5 पीक मैंने किए, तो 5 पीक मेरे सक्सेसफुल रहे हैं। तो वो मेरे पेरेंट्स को यकीन हो गया था कि हाँ यस ये कर सकती है। तो मैं उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा, जब मेरा पहला एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत सपोर्ट किया। फिर क्या होता है ना कि कई बार हम बच्चे लोग होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स को भी कभी कभी अवेयरनेस करवाना पड़ता है। कई बार होता है कि उनको भी नहीं पता होता माउंटेनियरिंग फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो लाइक मैं कभी उनको यूट्यूब में, कभी उनको न्यूज़पेपर में ये सारे आर्टिकल उनको पढ़ाती थी, देखो ये छोटे बच्चे भी पहाड़ चढ़ के आ जाते हैं। और एक जो अरुणिमा सिन्हा है जिनकी टांगी नहीं, उन्होंने भी एवरेस्ट क्लाइंब किया। ऐसे ऐसे लोग जब एवरेस्ट पे जा सकते, तो मेरे तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो लाइक मेरे पेरेंट्स को मैंने मतलब उनको अवेयरनेस किया, तब जाके फिर उनको समझ में आया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जब निम्न मेरा जो बेसिस कोर्स था, जब जब मुझे एंट्री करना था निम में, तो मैं अपने पेरेंट्स को साथ में लेके गई थी। और मेरा जो कोर्स जो था वो मई जून में आता था। मई जून में एक्चुअली लड़कियों के बैच में ही वो कोर्स कोर्स था मेरा।
तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी, और जब मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, देखो कितनी 100 लड़कियां आती हैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए। फिर इसके बाद उनको यकीन हुआ कि चलो ठीक है, अभी मेरी बेटी को ये करना है तो चलो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। रिजल्ट आने के बाद फिर उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको भरोसा करना चाहिए कि हाँ, अगर उनकी बेटी ने अगर कोई ड्रीम को ठान लिया है करने के लिए, तो डेफिनेटली वो करके दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो होता है वो पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं हो तो फिर आप लाइफ में चाहे कितना भी आप अच्छे क्यों ना हो किसी भी फील्ड में, तो वो कहीं ना कहीं एक जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है पेरेंट्स की वजह से। तो मैं पेरेंट्स को भी यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें। दैट्स रियली स्वीट मैम, दैट्स रियली नाइस मैम। और अगर आपकी जर्नी में आप मैम, मेरा वॉइस ऑडिबल है मैम? कैन यू हियर मी? क्योंकि आपका लोडिंग में। ओके ओके। या सो आपकी जर्नी में अगर हम बोले कि आप किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे तो मैम वो कौन होगा आपके पूरे लाइफ में, पूरी लाइफ में कंसिडरिंग एवरी से? मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया है। तो स्टार्टिंग अगर फर्स्ट नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो वो है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के जो स्टाफ इंस्ट्रक्टर जो है उनका लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था। एंड देन इसके बाद मैं अपने जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया है, नेहरू माउंटेनियरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और साथ में मैं अपना स्कीइंग का भी जो मैंने जहाँ से मैंने स्कीइंग कोर्स किया IISM से। और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के क्लोज फ्रेंड्स हैं, और इसके बाद फिर फाइनली मैं अपने पेरेंट्स का बोल दूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं। तो Definitely, definitely. That's really like happy to hear that. And also to all the audience, अगर किसी को भी मैम के लिए कोई भी फीडबैक कुछ भी बोलना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। एंड ऑल्सो मैम, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इंटरव्यू का होगा, अगर बात करते हैं गोल की, तो मैम आपकी लाइफ में अभी आपका गोल क्या है मैम? सॉरी, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैम अगर आपकी लाइफ में गोल की बात करें तो आपके लिए गोल क्या है अभी? गोल हैप्पीनेस, बिकॉज मैं समझती हूँ कि हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आप जिस फील्ड में भी आप काम करते हो तो आपका खुश रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही खुशी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको आगे तक लेकर जाती है। तो हैप्पीनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। ओके। एंड उसी के साथ मैम काफी आपके लिए फीडबैक्स आए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली यू आर वेरी इंस्पायरिंग मैम। क्या मैम? मैं बिल्कुल भी कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ ध्यान दूंगी तो मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, फिर के बाद मैं कुछ और बोल पड़ूंगी। तो कई बार ऐसा होता है मैं भूल भी जाती हूँ। तो फिर इसलिए मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप मुझे DM करो। तो मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगी। डेफिनेटली मैम। और मैंने फिर भी ट्राई तो किया है कि जितने भी कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको डिलीवर ट्राई तो सारे किए हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस डिलीवर करूं। कुछ अगर छूट गए हो तो प्लीज या तो हमें TEDx गोल्डन ब्रिज पे DM करें, हम मैम तक फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर आप मैम को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड टॉकिंग अबाउट सम जो काफी फीडबैक्स हमें मिले हैं, सो यू वर truly very inspiring ma'am. Ma'am, you are great. People like you motivate us, and we should never give up. And someone from comment section, Ashi karke, proud of you Amisha. You are a motivation to everybody ma'am. Her goal is just mountain, that's it. And she is a role model.
Then, ma'am, you are so authentic and so grounded. Much love from everyone, ma'am. That's really, really, really very nice to see you. And we also have one comment from Kharolia Prikshit जो continuous questions और उनका काफी input रहा था पूरे live session में Kharolia Prikshit का that you have gone through the situations one can't ever imagine of. Take a bow. And genuinely, ma'am, from everyone from Team TEDx Golden Bridge, a huge salute to you, ma'am. थैंक यू सो मच। आपने ये लाइव सीजन रख के मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, क्योंकि ये मेरा दूसरा लाइव सीजन है। और आई एम सो हैप्पी कि यस मैं अपनी जो भी मेरी जर्नी रही है वो मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, अपनी बात को रख पा रही हूँ। मुझे भी ये लाइव सीजन बहुत अच्छा लगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे बचपन के रिलेटिव मैं उसको मेमोरी जो है वो फ्रेश हुआ मेरे। लाइक मैंने स्कूल लाइफ के बारे में मैंने बताया कि कैसे मैं स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और कोई ना कोई मेरा मेडल जरूर आता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो that's really great, ma'am. जी मैम। मैं वैसे कमेंट सो एक और कमेंट हम हाँ ऐसा है कि आई एम रियली थैंकफुल टू TEDx and Amisha ma'am for this live session. I have been waiting for this and also requested ma'am to come live to share the experience. So thank you so much, V Chabra 5. So that's really great to hear that. And we also have ma'am, we love you from Jyoti उन्होंने लिखा था। And once again, Kharolia Prakshit, long way to go, keep hustling. So that's really great, ma'am, to have you with us. And thank you so much कि आपने TEDx Golden Bridge का invitation accept किया and आप इस initiative में एक part रह चुके हैं। Definitely it will be in our memories कि जो हमने आपके साथ interaction किया। That's really really interesting and thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच। मैं आपको भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और उन सभी लोगों को जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, जो लोग मुझे इतना प्यार और मुझे साथ में मोटिवेट भी करते रहते हो, उन सबको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। एंड मैम हर एक आपके आंसर में मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये हार्ट्स आना बंद हुए। सो आपके हर एक आंसर में आपके ऑडियंस ने आपको हमेशा प्यार दिया। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग, लाइक वन ऑफ द अचीवमेंट जो हम बोल सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच। So that's it from our side. Thank you so much, ma'am, on behalf of whole TEDx Golden Bridge team, which is like in the initiative of Ideas Worth Spreading, which was presented you by Curtain Call Productions. So thank you so much, ma'am. Thank you so much.